Hey everyone, let's revise chapter 2 history, that is from hunting, gathering to growing food. The most important part of this chapter is understanding the three basic dividation of the Stone Age, that is Paleolithic Age, Mesolithic Age and Neolithic Age. The Stone Age is divided into three groups, which is Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. Paleolithic extend from 2 million years ago to 12,000 years ago. Mesolithic from 12,000 years ago to 10,000 years ago. And Neolithic, that is 10,000 to 6,000 years ago. That is that we also say 10,000 years ago to the new current era. Now from this only you will be able to identify the features. Simply if you want to revise, we can directly go on like Paleolithic age mein we'll be talking about the kind of stone or the tools which have been found. So stone, bone and wood were the three type of tools which have been found during this period. They were the people were hunter and gatherers in Paleolithic age, and 99% of the human history lies in this period only. When we talk of Mesolithic period, the most important things which lies under Mesolithic period is domestication. Yani the people started growing crop and taming animals. They became farmers and herders. Okay, and the most important part of Mesolithic period is microlith. Microlith क्या था? छोटे tools मिले थे इसमें, the small tiny tools which have been found, जो कि बोन और वुड से अटैच करके सॉज और सिकल्स बनाते थे वो लोग. सो द टाइनी टूल्स विच हैव बीन फाउंड विच वर अटैच विद द बोन ऑफ विद द हैंडल ऑफ बोन एंड वुड टू मेक सॉज एंड सिकल्स, वो मेसोलिथिक पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स में आ जाएगा. नियोलिथिक पीरियड में व्हील्स का इन्वेंशन है एंड द फाइन वैरायटी ऑफ एंड द गुड वैरायटी ऑफ टूल्स. सो ये तीन चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइम पीरियड 2 million years to 12,000 years ago is Paleolithic, 12,000 to 10,000 years ago is Mesolithic, and 10,000 to the current is Neolithic. And the features that I've told you. Let's move to the chapter and the most important topics that is to be dealt. Now here the chapter starts with why do the hunter gatherers, यानी Paleolithic period की यहाँ बात हो रही है 2 million years to 12,000 years ago. और मैंने ये भी बोला है कि 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री इसमें लाई करती है. का मतलब है कि हम हंटर गैदरर्स की बात कर रहे हैं. हंटर गैदरर्स कौन है? हंटर गैदरर्स दे द पीपल हु हंट एंड गैदर थिंग्स. दे वर द नोमैड. नोमैड वर्ड हम हंटर गैदरर के लिए यूज़ कर सकते हैं. क्यों? नोमैड वर द पीपल दोज हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो कभी सेटल नहीं होते थे. और कभी भी हंटर गैदरर्स की बात होगी तो दिमाग में रखना है कि वो पेलियोलिथिक पीरियड की बात कर रहा है, पेलियोलिथिक पीरियड की बात कर रहा है, यानी 2 million year to 12,000 years ago. अब वो रीज़न क्या था? वाई दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? 3-4 रीजन्स है जिसको एकदम दिमाग में रखना है. फर्स्ट, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ पेरिनियल रिवर. पेरिनियल रिवर क्या होता है? ये वर्ड again is very important according to the chapter. Perennial river is a river which have water throughout the year, यानी कि उसमें पानी पूरे सालों साल रहता है, उसका पानी ख़त्म नहीं होता है. उसमें पानी कहाँ से आता है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से पानी आएगा. सो इन सर्च ऑफ फूड हो गया, इन सर्च ऑफ वाटर हो गया, इन सर्च ऑफ प्रे. अब वो किसी को हंट कर रहे हैं, किसी एनिमल को, तो दे हैव टू मूव विद दैट एनिमल. Okay, throughout. So in search of prey they will move, and in search of the plants, okay, which bear, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि कौन सा प्लांट किस सीजन में फ्रूट देता है. सो दे हैव टू मूव टू द डिफरेंट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन्स. सो ये हो गया 4 प्लेसेस. इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ प्रे और इन सर्च ऑफ हंटिंग. So to hunt and in search of the seasonal fruits. Now coming to how do we know about these people. अब हमको कैसे पता चला, हम लोगों को कैसे पता चला इन लोगों के बारे में? तो yes, the archaeologists जो हैं, जो historians, those who have written history के जो records हैं. अब रिकॉर्ड्स की बात करें तो दिस इज़ द टाइम पीरियड व्हेन नो रिटन रिकॉर्ड्स हैव बीन फाउंड. तब इनके बारे में कैसे पता चला? तो जो पता चला वो ये सारी चीज़ों के बारे में तब पता चला व्हेन आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द थिंग्स. जो जब अर्थ की डिगिंग होने लगी या फिर एक्सकवेशन होने लगा, वहाँ पे बिल्डिंग्स या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन होने लगा, या तब उनको पता चला जो जो चीज़ें निकल रही थी, कहीं सरफेस से मिल रही थी, कोई
द अर्थ के ऊपर थी, कोई सी के नीचे था, कोई ग्राउंड के अंदर था. सो द थिंग्स दैट दे हैव फाउंड, उससे द थिंग्स दैट द पीपल ऑफ द पास्ट हैव यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड, उससे पता चला दैट दे हैव यूज्ड ऑल, जो जो चीज़ें मिलती गई उससे ये प्रिडिक्शन लगाते गए दैट दीज आर द थिंग्स. ओके, दे हैव यूज्ड दिस ऑल्सो, दे हैव यूज्ड. एंड पेलियोलिथिक पीरियड में मैंने दो जो फीचर्स बताए थे उसमें से पहला फीचर था व्हाट आर द थ्री काइंड ऑफ टूल्स, तीन मटीरियल्स, द थ्री मटीरियल्स ऑफ टूल्स विच हैव बीन फाउंड. वो था स्टोन, बोन एंड वुड. याद रखना है, स्टोन, बोन एंड वुड. नाउ हाउ डिड दे चूज द प्लेस टू लिव इन? अब वो कैसे चूज़ किए प्लेस को? फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू दिस मैप इज़, ये क्वेश्चन हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है कि वेयर डिड द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स. हंटर गैदरर्स का एविडेंस कहाँ कहाँ से मिला था? मेजरली इस मैप में देखना है वो प्लेसेस को, दैट इज़ भिम्बेटका, हुंसगी एंड कुरनूल केव. ये हैं पेलियोलिथिक. अभी हम लोग पेलियोलिथिक साइट्स के बारे में और पेलियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं. तो पेलियोलिथिक साइट्स हैं भिम्बेटका, कुरनूल केव्स एंड हुंसगी. भिम्बेटका है मध्य प्रदेश में. भिम्बेटका में से क्या मिला था? भिम्बेटका में हमको केव पेंटिंग मिली थी. ठीक है, जितने भी केव्स के अंदर केव्स मिले थे और केव के अंदर पेंटिंग्स मिली थी. जो भी वो करते थे, क्योंकि वो बोल नहीं पाते थे, वो लिख नहीं पाते थे, तो वो पेंट करते थे. तो केव पेंटिंग मिली थी भिम्बेटका से. हुंसगी वॉज द प्लेस वेयर दे हैव फाउंड द स्टोन टूल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ, वहाँ पे टूल्स बनते थे. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स हैव बीन फाउंड इन हुंसगी. एंड कुरनूल केव्स वर द प्लेसेस वेयर दे हैव फाउंड द एशेज ऑफ द बर्न्ट ग्रेन्स. राख मिली थी वहाँ पे, एशेज मिले थे, जली हुई अनाज मिला था और बहुत सारे जले जले चीज़ें मिली थी जिसके बर्न चीज़ों से, और उस राख से पता चला था कि ओके दे वर अवेयर ऑफ द फायर ऑल्सो. मैं एजेस के साथ और पेलियोलिथिक साइट्स के बारे में मैंने बताया, स्टोन, बोन एंड वुड मटेरियल मिला. उसके बाद मैंने बताया कि दीज वर द थ्री प्लेसेस, यानी भिम्बेटका, हुंसगी और कुरनूल केव्स. ये तीन प्लेसेस थे जहाँ से अलग अलग चीज़ें मिली. भिम्बेटका से हम लोगों को क्या मिला? मिला था केव पेंटिंग. हुंसगी से मिला स्टोन टूल्स. कुरनूल केव्स से मिला फायर, एशेज ऑफ बर्न्ड ग्रेन्स एंड ऑल, और उनसे ये सारी चीज़ें पता चली. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे ऑलवेज, यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ कि कहाँ से क्या मिला था. नाउ कमिंग टू द रॉक पेंटिंग दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये भिम्बेटका से मिला था. दिस इज़ द रॉक शेल्टर. अगेन, अब शेल्टर, रॉक शेल्टर का क्या यूज़ है? क्यों वो केव एज दे यूज टू एस्केप एंड यूज़ द केव एज अ शेल्टर? क्योंकि to escape from the natural disaster, to to scare away from the animals. Scare away from the animals नहीं बोलेंगे, हम बोल सकते हैं कि विंड से बचना, धूप से बचना, नेचुरल कैलामिटीज से बचना. एंड हियर it is given that the cave shelter, these are the caves that provide shelter from the rain, heat and wind. Okay, now coming to the sites. Sites कुछ भी नहीं, बस इतना याद रखना है, जो भी चीज़ें wherever the archaeologists have found the things which were left behind by the people, वो अर्थ के ऊपर भी हो सकता है, सी बेड के नीचे भी हो सकता है, अंडरग्राउंड भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. सो साइट्स आर द प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ द थिंग्स वर फाउंड and which were used and left behind by the people, which were left behind by the people who were there in the past. ये names and dates में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बिगिनिंग में ही पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक का एज बता दिया है कि किस में क्या इंपॉर्टेंट था. माइक्रोलिथ्स इस बॉक्स के अंदर मिलेगा. माइक्रोलिथ भी मैंने मेसोलिथिक पीरियड यानी कि 12,000 to 10,000 ईयर्स अगो के बारे में बताया है. माइक्रोलिथ क्या है? स्मॉल टाइनी टूल्स. ये स्पेशलिटी थी मेसोलिथिक पीरियड में, ये मिला था माइक्रोलिथ्स. दे वर द स्मॉल टाइनी टूल्स विच वर जनरली टाइनी, और इसको दे वर स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन एंड वुड. इसके छोटे छोटे टूल्स के साइड में बोन और वुड का हैंडल लगाया जाता था और उसको बांध के दे यूज्ड इट एज अ सॉज एंड सिकल्स. सो मेसोलिथिक पीरियड का ये अमेजिंग फाइंड है. नाउ कमिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट. चेंजिंग इन्वायरमेंट देखो, 12,000 ईयर्स अगो में दो चीज़ें. एक तो ग्रासलैंड डेवलप हुआ.
यानी क्यों ग्रासलैंड डेवलप हुआ? क्योंकि क्लाइमेट वार्म हो गया था। अर्लियर पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें तो क्लाइमेट वॉज वेरी चिल्ड क्लाइमेट, ओके, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट था। बट 12,000 साल पहले यानी 12,000 ईयर्स अगो द इन्वायरमेंट चेंजेस एंड दैट्स वाई ग्रासलैंड डेवलप हुआ। ग्रासलैंड डेवलप हुआ तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स बढ़ने लगे। ग्रास ईटिंग एनिमल्स बढ़ने लगे तो वो ब्रीड करने लगे तो डोमेस्टिक एनिमल्स बढ़ने लगे, वाइल्ड एनिमल। मतलब ग्रासेस बढ़ेंगे तभी तो ग्रास ईटिंग एनिमल सर्वाइव करेंगे। सो दो चीज़ें 12,000 ईयर्स अगो में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डोमेस्टिकेशन और एक द चेंजिंग इन्वायरमेंट, और ग्रासलैंड डेवलप हुआ, ओके। सो एनिमल्स who hunted these those who hunted these kind of animal यानी कि grass eating animal now followed them। अब 12,000 साल पहले की जब भी हम बात करेंगे और हम जब भी डोमेस्टिकेशन वर्ड की बात करेंगे तो हमेशा याद रखना है डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या हुआ? जब वो फार्मर बन गए यानी कि दे स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट्स एंड दे स्टार्टेड टेमिंग एनिमल्स को वो टेम करने लगे यानी कि डोमेस्टिकेट करने लगे। अब जिस एनिमल को वो हंट करते थे अब उसको वो फॉलो करने लगे और उसका ब्रीडिंग सीजन पता करने लगे और उसको उसका नेचर पता करने लगे कि वो कैसा है, डोमेस्टिक है कि वाइल्ड है, वो अटैक कर रहा है। खाना छोड़ने लगे अपने घर के बाहर सो दैट दे कैन चेक दैट वेदर द एनिमल दे हैव अंडरस्टूड, दे हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो डोमेस्टिकेशन का मतलब ये हुआ द प्रोसेस इन विच दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप एंड लुकिंग आफ्टर एनिमल। मतलब वो फार्मर और हर्डर बन गए यानी कि प्लांट उगाने लगे और एनिमल्स को टेम करने लगे, पालने लगे। नाउ बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग कब बिगिन हुआ? व्हेन जब ग्रास ईटिंग एनिमल्स बढ़ रहे थे यानी ग्रासलैंड डेवलप हो रहा था। ग्रासलैंड डेवलप हो रहा था तो वो भी प्लांट्स नेचुरली अकर होने लगे, नेचुरली ग्रो कर रहे थे। अब नेचुरली प्लांट्स जो ग्रो कर रहे थे उनको जैसे वो एनिमल्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिए थे जिसको वो हंट करते थे और उसकी ब्रीडिंग सीजन्स को ध्यान में रखने लगे थे और वो चीज़ें उनको ऑब्जर्व करने लगे थे, द सेम वे दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग एनिमल्स ऑल्सो। वो एनिमल्स के भी प्लांट्स के भी जो नेचुरली ग्रो किए थे प्लांट्स, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए कि ये ग्रो कैसे करते हैं, ये इनको पानी कब चाहिए। सो दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू ग्रो क्रॉप्स, तब वो फार्मर बने एंड दे स्टार्टेड फार्मिंग। डोमेस्टिकेशन में मैंने पूरा बता दिया, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल। ये एक ऐसा टाइम था यानी कि 12,000 साल पहले की बात हो रही है, 12,000 ईयर्स अगो में ये चेंज आया था, डोमेस्टिकेशन आया था। यानी कि वो फार्मर और हर्डर बन गए थे, उनको अब डिफरेंसेस समझ में आ रहे थे, टूथ का स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंस है कि डोमेस्टिक एनिमल का टीथ कैसा है, वाइल्ड एनिमल का कैसा है, एडिबल प्लांट कौन से खाने वाले पौधे हैं, कौन से नहीं खाने वाले पौधे हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था डोमेस्टिकेशन उनके लिए। जहाँ पे डोमेस्टिकेशन जब स्टार्ट हुआ तो वो प्लांट्स और एनिमल्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिए, ओके। नाउ कमिंग टू रियरिंग एनिमल में ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अब वो एनिमल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, उनका ब्रीडिंग सीजन पता कर चुके थे, तो अब उसको एज अ स्टोर ऑफ फूड रखते थे। जैसे अगर वो गोट पाले हैं, ठीक है, तो दे आर रिलेटिवली जेंटल इन नेचर, तो घर के बाहर खाना रखना, उनको वो आएंगे खाएंगे, अगर वो कुछ हार्म नहीं कर रहे हैं मतलब वो डोमेस्टिक एनिमल है। अगर वो उनको टेम कर रहे हैं तो वो एज अ सोर्स, सपोज उनके पास जब खाना नहीं है तो वो उस गोट पे डिपेंडेंट रह सकते हैं एंड दे कैन ईट दैट फ्लैश ऑफ गोट। नाउ finding out about the first farmers and herders, the most important topic here, this was the people have found the evidence of first farmers and herders. ये present day कश्मीर में है, they have found all over the subcontinent, और इसमें specially the remains, the evidences of plants and animal bones have been found, and scientists have identified these grains and the crops which they usually grow. द ब्लू स्क्वायर बॉक्सेस, यहाँ देखिए, द ब्लू स्क्वायर बॉक्सेस यानी कि कोल्डेहवा, महाघरा, बुरजा होम, मेहरघर, दाऊजी हडिंग, चिरांद, हलूर, ये सारे प्लेसेस पे द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। यहाँ पे ये लोग ऑब्जर्व करके प्लांट्स को ग्रो करा रहे थे और एनिमल्स को टेम कर रहे थे। याद रखना है ये सारे साइट्स, जैसे मैंने पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में भिम्बेटका, हुंसगी, कुर्नूल केव्स बताया, वैसे ही
डोमेस्टिकेशन के लिए चिरांद, कोल्डेवा, महागरा, दाऊजी हडिंग, बुरजा होम, मेहरघर, हलूर, दे आर द मोस्ट important sites where archaeologists have found the evidence of first farmers and herders. So here we came to the last topic of this chapter, is towards the settled life. That is towards the settled life. Now when they became farmers and herders, so they have to stay at the same place for the longer period of time. They have to water, they have to हार्वेस्ट, वीडिंग एंड ऑल, बहुत सारा प्रोसेस होता है व्हेन दे बिकेम फार्मर्स. और वो अगर क्रॉप ग्रो करा रहे हैं तो दे कैन नॉट मूव अवे एनीवेयर, क्योंकि उनको प्लांट्स को भी देखना था. तो अब जब उनको प्लांट्स को देखना था तो अब उनको एक जगह पे ज़्यादा दिन तक रहना पड़ेगा. सो दे हैव टू सेटल एट वन प्लेस फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो ये टाइम आया जब वो सेटल होना स्टार्ट किए. तो जब सेटल होना स्टार्ट किए तो वहाँ के एविडेंसेस, यानी बुरजा होम, यहाँ देखो, this is the map. Burza home you can see there in Kashmir. ठीक है. So Kashmir, Burza home was the place where archaeologists have found the evidence of the houses. यहाँ पे pit houses मिले थे. Okay, pit houses कैसे थे? Which were dug into the ground with the steps leading into it. Okay, मतलब अर्थ एक प्लेन सा सरफेस है, उसको थोड़ा सा गड्ढे की तरह खोदते थे, थोड़ा सा अंदर करते थे, उसके बाद उसमें सीढ़ी लगाते थे, उसके अंदर जाते थे और ऊपर से उसको कवर कर देते थे. और वो क्यों यूज़ करते थे? पिट हाउसेस का यूज़ क्या था? बिकॉज इट कैन आस्क यू द व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द पिट हाउसेस. पिट हाउसेस मिला कहाँ था? वो बुरजा होम कश्मीर में मिला था. काम क्या था कि जैसे वेदर बारिश हो रही है तो दे कैन कुक इनसाइड, एनिमल्स से बचना है, या फिर डिपेंडिंग अपॉन द वेदर, बहुत ज़्यादा ठंड है तो दे कैन कुक इनसाइड, एंड टू एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिज़ास्टर्स, या फिर रेन, हीट एंड विंड, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. वो कभी बाहर बनाते थे खाना, कभी अंदर बनाते थे, कभी अंदर रहते थे, कभी बाहर रहते थे. सो दिस वॉज एज पर देयर नीड. एंड यहाँ पे कुकिंग हर्ड्स, जो प्लेट्स, बोल्स मिले थे, वो पिट हाउसेस के अंदर भी मिले थे और बाहर भी मिले थे. दैट शोज़ दैट कि वो डिपेंडिंग अपॉन द वेदर एंड द सिचुएशन दे लिव इनसाइड और आउटसाइड the pit houses. Now coming to the mortars and pestles were used for grinding grains. Okay, that was also found there. And at the same time tools of the Paleolithic types continued to be used. ऐसा नहीं था कि Paleolithic tools बंद हो गए थे यूज़ होना, नहीं, वो यूज़ कर रहे थे. Many kind of earthen pots भी मिले थे वहाँ पे, जो कि black and red ware, जो कि बहुत ही ज़्यादा important है. एंड डग पिट्स भी मिले थे, जो कि अभी मेंशन नहीं है. डग पिट्स मतलब करे घर के अंदर ही थोड़ा सा छोटा सा खोद के उसके अंदर पॉट्स रख के, पॉट्स के अंदर वो ग्रेन्स को स्टोर कर रहे थे. बिकॉज अब वो कंजम्पशन के लिए यूज़ करने के बाद जो भी ग्रेन बचता था उसको स्टोर करते थे ताकि वो नेक्स्ट बार फार्मिंग कर सकें और अपने यूज़ के लिए भी वो उसको यूज़ कर सकें. सो दिस वॉज द पॉट, द जार विच वॉज यूज टू स्टोर द ग्रेन्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लास्ट टॉपिक, दैट इज़ लिविंग एंड डाइंग एट मेहरगढ़. ये एक ऐसा प्लेस है जो कि पाकिस्तान में है, विच इज़ लोकेटेड नियर द बोलान पास, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट ऑफ ईरान. ये याद रखना है. और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें से एक चीज़ NCERT का क्वेश्चन है एक, दैट मैनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ आर हंटर्स इन द बिगिनिंग, और बाद में वो हर्डर्स बन गए थे. मतलब पहले वो हंटिंग करते थे, बाद में वो हर्ड करने लगे थे, यानी टेम करने लगे थे. ऐसा क्यों हुआ था और क्यों ऐसा बोला जाता है? बिकॉज अर्लीस्ट लेवल में वाइल्ड एनिमल्स के बोन मिले, यहाँ पे बोन्स मिले थे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल के, लाइक डियर, पिग एंड ऑल. ठीक है, बिगिनिंग में. बट लेटर, बाद में, बोन्स ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, गोट, कैटल, स्पेशली कैटल्स के बोन्स मिले थे, विच सजेस्ट कि पहले बिगिनिंग में वो हर्डर्स थे और लेटर वो बिगिनिंग में वो हंटर्स थे, लेटर वो हर्डर्स बन गए. नाउ ये स्पेशली यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाउसेस मिले थे, एंड द रिमेन्स ऑफ द हाउसेस लाइक रेक्टेंगुलर, स्पेशली रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ हाउसेस यहाँ मिले थे, जिसमें 4 कंपार्टमेंट या 4 से अधिक कंपार्टमेंट होता था. ठीक है, एंड जिसमें से एक स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था. नाउ यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है, बरियल फ्रॉम मेहरगढ़. यहाँ पे जो चीज़ समझनी है मेहरगढ़ के बारे में, वो एक अमेजिंग चीज़ ये थी कि यहाँ के लोग
लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे. होता क्या था कि वेन एवर एनी बडी डाइज इन मेहरगढ़ दे यूज टू पे अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट टू दैट पर्सन. और रेस्पेक्ट जब भी कोई मरता था तो दे यूज टू पे अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट टू द पर्सन और उसको बरी करते थे विथ अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक गोट एंड ऑल, बिकॉज दे बिलीव कि इंसान मरने के बाद वो नेक्स्ट वर्ल्ड में जा रहा है, मतलब नेक्स्ट दुनिया में जा रहा है, सो दे विल बी इन द नीड ऑफ समथिंग. दैट्स वाई दे पे अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट एंड दे बरियल को इस तरीके से अरेंज करते थे जहाँ पे द डेड पर्सन वॉज बरीड विथ गोट and the other the earthen pots and utensils which serve as a food in the next world. So this is the end of the chapter. I hope you'll be able to revise. Thank you.